Name is Pankaj Kothari. I am the founder president of Karnataka Federation of Catering Association, FKC. They have invited me at 2 o'clock to give some speech. The topic is what is the future of catering industry in India. I see a very, very bright future and lot of prospect. After Corona, the things have started picking up. And after Diwali, I see lot of good business. And 23, 24, 2 years will be so good that all my losses and everybody's losses will be recovered, and they all will grow and prosper like anything. How useful means food industry, catering industry, hotel industry is the best of the best industry in not India, in whole world. This industry will prosper like anything. सर स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी की बात होती है, बेंगलोर को खास माना जाता है, क्या खुसूसियात है बेंगलोर की? बेंगलोर की स्पेशलिटी ये है कि जैसे अतिथि देवो भव बोलते हैं, बेंगलोर में सभी अतिथियों का बहुत सत्कार है। बेंगलोर की हॉस्पिटैलिटी पूरे इंडिया में सबसे अच्छा है। ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो गई है और यहाँ सब लोग बसते हैं। आईटी आने से इधर इतने सभी ऑल ओवर इंडिया के यूथ आ गए हैं कि सभी मिक्स हो गए हैं। यहाँ का आईटी और पब कल्चर नंबर 1 माना जाता है, तो इसके साथ में हॉस्पिटैलिटी भी जॉइंट हो गई है। कुदरत की तरफ से भी यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, हाँ, कुदरत की तरफ से क्या है, यहाँ का हवामान अच्छा है, यहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, यहाँ के आदमी अच्छे हैं, यहाँ दिल्ली जैसा दंगा फसाद नहीं है, यहाँ पे यूपी मेरठ जैसी माफियागिरी नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बराबर ना। आई डोंट कर्स एनीबॉडी, वो सिटी भी अच्छी है, लेकिन वहाँ जरा लॉ एंड ऑर्डर डेंजर है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, खाना पीना भी बहुत रीजनेबल और बहुत अच्छा है, इंसान भी अच्छे हैं, और यहाँ के हवामान ऐसा है कि लोगों को काम मेहनत करके लोगों के साथ मिक्स करके एंजॉय करने में खुशी होती है। आई हैव टू टेल एवरीबडी that don't leave this business. Many of my colleague friends in 2 years of Corona, they have suffered so much of losses and they have suffered so much of problem that at least 25 to 30% people have stopped the business. Many people have changed the line. Many people have gone back to their village and suffered a huge loss. But I am telling, I also suffered a loss. लेकिन मैं 2 साल मेहनत करके स्टेमिना से पेशेंस से वेट किया हूँ, एंड दिस विल पे द रिवॉर्ड। आई एम टेलिंग एंटायर फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री not to leave this line. Another 2-3 years are miracle. Everybody will get the jackpot, but just keep on working hard sincerely. I'm Sitaram Prasad, the corporate chef, GRD Hotels and Resorts, and General Secretary, South India Chefs Association, and Vice President, Indian Federation of Chefs Association. And I'm here with this Hospitality World, Express Hospitality, where it's an event which every year it happens. Due to pandemic, due to invisible virus, we were disconnected. We are back now on track, and we Chefs Association always there with this event, and this is happening for a couple of years, and we associate with them with the kind of competitions, seminars and all those things, like, and I'm able to see a lot of participation this time, and the support and the encouragement where the hospitality, Express Hospitality gives us is immense, very much, very immense. We always want to partner with them, not only this year, years to come forward, we are there with them, like, definitely, and we are able to see a lot of hospitality suppliers in the exhibition. I never expected this kind of participation, and I think things are bouncing back in India, and we are all there on track now to our own businesses. Like, we were disconnected very badly 2.5 years, and now we are back. Thank God that we are all bouncing back within no time. What is the specialty South India's hospitality? See, South India's hospitality, which you all know, warmth, and in South India we give a kind of emotional
reactions, and we try to take care of every guest emotionally, and we respect them a lot. Like Ati Devo Bhava, the guest is God. Like which is our motto in South. Like we hospitality people, we take care of a guest very personally and try to give them the best warmth when they visit South India. That is what is our specialty. वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट एडिशन हो रहा है वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी का बेंगलुरु में। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से इंडस्ट्री भी थोड़ा स्लो चल रहा था, रिस्पांस नहीं मिल रहा था इंडस्ट्री में। एक आधा साल में क्लाउड किचन काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। 2 साल से इंडस्ट्री वेट कर रहा था कि कुछ चेंजेस आए। हम लोग होटल्स में गए, बात किया, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलना चालू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री अब बिलीव कर रहा है कि ट्रैवल ओपन होएगा, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा इनकरेजमेंट मिल रहा है। पिछले 1-2 साल में क्लाउड किचन कैफ़ेज़ काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रहा है। इस एग्जीबिशन में हम लोग ने इनक्रेडिबल शेफ़ चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें 170 शेफ़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इनक्रेडिबल शेफ़ चैलेंज हम लोग ने सीका के साथ मिलकर किया है। सीका स्टैंड फॉर साउथ इंडिया कुलिनरी एसोसिएशन। तो उसमें हम लोग ने 3 दिन का कुकिंग कंपटीशन रखा है। पहले दिन केक मेकिंग कंपटीशन है, दूसरे दिन कार्विंग कंपटीशन है, एंड थर्ड डे हमारा रहेगा लाइव कुकिंग। इस कंपटीशन को हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग बैंगलोर में ही कर रहे हैं, सितंबर में हमारा प्लान है गोवा में करने का, फिर उसके बाद हम लोग कोलकाता प्लान कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे को। इनफैक्ट जो सप्लायर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री से भी बहुत लोग आ रहे हैं। केटरिंग आपका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। होटेलियर, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, QSR, ये इस तरह के विजिटर्स आ रहे हैं। तो इनफैक्ट इंडस्ट्री में भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा चल रहा है। बैंगलोर को क्यों आपने चुना? बैंगलोर को हम लोग ने इसलिए चुना क्योंकि काफ़ी कैफ़े हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट है, और साउथ में बैंगलोर में इतने लार्ज स्केल में एग्जीबिशन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट हमने एसोसिएशन से बात किया, एसोसिएशन ने भी हमको बोला कि बैंगलोर का प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ करो, जिसको हम लोग एक आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वी ऑप्टेड फॉर बैंगलोर।